ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର MCQ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଘଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କେବଳ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବଦଳେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କେବଳ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବଦଳେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କେବଳ ରାସାୟନିକ ଓ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବଦଳେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ଉଭୟ ରାସାୟନିକ ଓ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବଦଳେ। ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ଜାଳିଲେ ଏଥିରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ଜାଳିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଆମର ଧଳା, କଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ଜାଳିଲେ ଆମର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ଜାଳିଲେ ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ଜାଳିଲେ ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ ତାକୁ ଆମେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଜିଙ୍କ୍ ସହ ଅମ୍ଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ତମକୁ ପଢ଼ାଇଥିଲା ଯଦି କ'ଣ ଜିଙ୍କ୍ଟା ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିପରି ଆମର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ବାମ ପଟେ ତମର ପ୍ରତିକାରକ ରହିବ, ଡାହାଣ ପଟେ ଉତ୍ପାଦ ରହିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ତୁମର ଜାଣିଛ ଆମେ ଯଦି ଏକାଧିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର। ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ମିଶିଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? MgO2 ନା Mg2O ନା Mg2O3 ନା MgO? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଓଟୋ ଯଦି ମିଶିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳିଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯଦି 9 ନମ୍ବର ହେଲା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ସମାନ ଥିଲେ ତାହାକୁ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପରମାଣୁ ସମାନ ଥିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପରମାଣୁ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କହିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ସମତୁଲ ସମୀକରଣରେ ଉଭୟ କ'ଣ ଥିଲେ? ପରମାଣୁ ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ଓ ପ୍ରତିକାରକର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଯଦି କ'ଣ ଥିଲେ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଗୋଟେ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହେଇଥିବ କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ଓ ପ୍ରତିକାରକୁ କ'ଣ ସୂଚାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि किंबा विनाश घटे नहीं क्यों नियम से कौन कहला यदि वस्तुत्वर कौन थे शक्ति संरक्षण वस्तुत्वर संरक्षण ओ एन बी ना डी रे कौन सी आम कौन जाने जिते तुम विनाश घटे ना कि उत्पत्ति सृष्टि हुए ना माने हमारा वस्तुर संरक्षण ऑप्शन नंबर बी वस्तुत्व संरक्षण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसला मन कर कौन 12 नंबर क्वेश्चन देला Zn plus H2SO4 Zn plus H2SO4 हमरो मिसिकी कौन दिले रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन बाहर आम कौन जानते जदि तुम आसला Zn plus H2O4 बाहर ZnO2H2 बाहर ना Zn ऑप्शन नंबर बी देला ZnSO4 plus H2 बाहर ना Zn G plus hydrogen plus SO2 ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो तुम्हारा करेक्ट आंसर जिंक सल्फेट टू हाइड्रोजन गैस बाहर ऑप्शन नंबर बी ही तुम्हारा करेक्ट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड कहा सह प्रतिक्रिया करी समित चूर्ण उत्पन्न करे कैल्शियम ऑक्साइड कहा सहित प्रतिक्रिया करी हमरो कैल्शियम ऑक्साइड कहा सह प्रतिक्रिया करी प्रतिक्रिया करी समित चूर्ण उत्पन्न करे ये कौन पे आम कौन जानते कैल्शियम ऑक्साइड तुम जल सहित प्रतिक्रिया करी H2O सहित प्रतिक्रिया करी समित चूर्ण उत्पन्न करी थाए ओके नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कली चूर्ण संकेत कौन ये तुम्हारा कली चूर्ण संकेत है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड बोला सिंपल क्वेश्चन ये मन रखिदेव पे कौन कली चूर्ण संकेत होची ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड होची कली चूर्ण संकेत समित चूर्ण संकेत कौन पुणी पचारा तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर जोड़ा कि तुम ऑप्शन नंबर ए समित चूर्ण संकेत CaOH2 ओके ये तुम्हारा समित चूर्ण संकेत नेक्स्ट आसला देखिदवा जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई बा ततोधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद सृष्टि करती ताको कौन कहुए ये तुम जानिछ एक एकाधिक कौन तुम प्रतिकारक थो ताले आपको आम कौन कहते तुम संश्लेषण प्रक्रिया बोली कहते ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर नेक्स्ट आसला 17 नंबर क्वेश्चन मार्बल संकेत कौन मार्बल संकेत तुम जानिछ पे सिंपल क्वेश्चन मार्बल संकेत होची CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तुम ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट होची मार्बल संकेत से 18 नंबर क्वेश्चन पे कांथ धौलैवा कौन व्यवहार करा जाए कांथ धौलैया तुम कौन व्यवहार करा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये तुम्हारे कांथ धौलैया व्यवहार करा जाए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर से तुम 19 नंबर क्वेश्चन जो रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पाद उत्पन्न हेबा ताप उत्पन्न हुए ताकू केहू प्रतिक्रिया क्यों प्रकार प्रतिक्रिया बोली कहुए कौन जिते कौन रासायनिक प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न हम ताकू कौन कहुए ताप उत्पादी प्रक्रिया बोली कहुए 19 नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसला 20 नंबर क्वेश्चन सहज क्वेश्चन ग्लूकोज संकेत कौन आम जानते ग्लूकोज क्वेश्चन C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर से 21 नंबर क्वेश्चन है केउठी ताप शोषी प्रक्रिया
ताप शोषी प्रक्रिया तुमरो CH4 plus O2 equal to 8 that is तुमरो प्रोडक्ट बाहरियो CO2 एटा हम नाही ऑप्शन नंबर D ऑप्शन नंबर C is the correct answer C plus S2 धनो CH2 बाहर ले तुमरो ताप शोषी प्रक्रिया नेक्स्ट आसिला 22 नंबर क्वेश्चन क्यों ताप उत्पादी प्रक्रिया नहीं होला केउठी ताप उत्पादी प्रक्रिया नुहे पड़ेला कोयलार दहन शोषण प्राकृतिक ग्यास दहन उपरे हम पढ़ते ऑप्शन नंबर डी होची तुमर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट आसला 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मात्र प्रतिकारक विघटित होई सरलतार उत्पाद सृष्टि होता है ताको केउ प्रतिक्रिया हुआ जाए ये कमर कौन थे अब 23 नंबर क्वेश्चन बी हेला हमें कौन जानते विघटन बोली कहले हला विघटन प्रतिक्रिया बोली कहा जाए जो रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे मात्र प्रतिकारक विघटित होई सरलतार उत्पाद सृष्टि होता है ताको कौन कहा जाए विघटन प्रक्रिया बोली कहा जाए नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन ताप प्रयोग द्वारा घटुथिबा विघटन को कौन कहा जाए ताप प्रयोग द्वारा घटुथिबा विघटन को तापीय विघटन बोली कहा जाए ऑप्शन नंबर ए इज तुमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसला मन कर कौन कैल्शियम कार्बोनेट विघटन रे क्यों उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट जब आम विघटन करवा ताहले हमको कौन मिलता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है ऑप्शन नंबर बी इज तुम्हारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसला 26 नंबर क्वेश्चन लेड नाइट्रेट को गरम कले क्यों रंगर धूम उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है तुमरो जदि आमे लेड नाइट्रेट को गरम करवा ताले बादामी रंगर धूम धुआं उत्पन्न होता है नेक्स्ट आसला लेड नाइट्रेट को गरम कले जो धूम उत्पन्न हुई ताहार संकेत कौन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर NO2 ये हला तुम NO2 होची जेतेबेले आमे लेड नाइट्रेट को गरम करले गरम करू मरला NO2 तुमरो जो धूम बाहरे ताको NO2 बोली कहा जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहले हबो संकेत ओके नेक्स्ट आसला सिल्वर क्लोराइड रो वर्ण कौन सिल्वर क्लोराइड रो वर्ण होची नाली ना धला ना कला ना नील को 28 नंबर मोर सिल्वर क्लोराइड रो वर्ण होची धला नेक्स्ट आसला ऑप्शन नंबर ए मोर करेक्ट आंसर हेगला 29 नंबर सूर्यालोक रे सिल्वर क्लोराइड विघटन घटी कौन उत्पन्न करिथाई सूर्यालोक रे सिल्वर क्लोराइड विघटन घटी सिल्वर प्लस क्लोरीन देथाए ऑप्शन नंबर ए Ag प्लस Cl2 फॉर्मेशन होता है Ag प्लस Cl2 फॉर्मेशन होता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सही परी कौन पिले 30 नंबर क्वेश्चन कहा को धड़ा धड़ा फोटो संक्रांत कार्य व्यवहार करा जाए AgCl को कला धड़ा फोटो संक्रांत व्यवहार करा जाए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट आंसर आज 30टा क्वेश्चन कले मते भल लगे तुमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो तुम सांग मान को भी दे देबो ओके आज क्लास बंद करवा धन्यवाद थैंक यू।